Okay, we should start with what I am best in, which is teaching. So may I? Yes, please. Thank you. Chaliye. So let us understand. Since many of you follow me, and I have very, very strongly advocated that every person who is doing the CFA program should follow Damodaran. So I don't know whether you have watched his latest video, which was on the mega 7 companies, the likes of Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia. तो मैग्निफिशेंट 7 के ऊपर एक वीडियो आया था, एंड उस मैग्निफिशेंट 7 में आई थिंक टेस्ला को छोड़ के ऑल द कंपनीज वेयर नॉन मैन्युफैक्चरिंग. ओके, इवन इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, नो इश्यूज. जब मैं मैग्निफिशेंट 7 बोल रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ रहा है ना. ओके, जो फैंगम स्टॉक्स था उस पर नेटफ्लिक्स को आपने ड्रॉप कर दिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स. ठीक है, अपने एनवीडिया को इंक्लूड कर दिए, टेस्ला को इंक्लूड कर दिए. सो वी हैव द मैग्निफिशेंट 7 नाउ. ठीक है, तो एंड इन 7 कंपनीज में टेस्ला वाज द ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड द अदर कंपनीज वेर ऑल सर्विस कंपनीज, आईटी, ओके, टेक्नोलॉजी or making or designing chips. NVIDIA is not a manufacturer of chips, it's a designer of chips, so it cannot be called manufacturing. Now एक सर्विस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कौन सा होता है फॉर अ सर्विस कंपनी, स्पेशली इन आईटी कंपनी? यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज द एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन कॉस्ट एट ऑल लेवल्स, whether junior level employees, technical people, executive people, okay, the software designers, those who work in R&D, the accounts managers, the app designers, okay, the code writers. So the employee cost is a very massive component. Old school, old manufacturing industries को जो याद करेंगे ना, उनको ये important समझ में नहीं आएगा. They will feel that जो raw material cost ये सब होता है वो ज़्यादा important होता है. But if you are understanding how have I started for Infosys, for TCS, employee cost is the most important component which drives margins for the company. And you know, number 1, revenue ka drivers, number 2, margins, number 3, net investment, yani the efficiency with which our investment translates into revenue. I'm talking about capital spending, change in working capital. ठीक है, तो revenue का driver, margins and your net investment, they are the ones that go into free cash flow for the firm, FCFF. And then obviously the discount rate, cost of capital, and you get the value of the firm and the value of equity. Correct? So we cannot forget while doing these chapters that ultimately we are becoming an analyst and we are picking up companies and valuing the same. And we are not the ones who just do P ratio into EPS. We do पूरा spreadsheet लेके valuation as in DCF, FCFF or FCFE or DDM. So I mean to say one of the main drivers of your forecast shall be margins. ये company का margins क्या होगा? And company का margins is a big function of employee cost, especially in these service oriented companies. Hence at level 1 and level 2 दोनों में इन्होंने बहुत अच्छा राइटअप दे रखा है ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट. नाउ लेवल 1 में व्हेन वी रिकॉल और इफ यू वांट टू विजिट द पेंशन और एम्प्लॉय वाला चैप्टर, यू विल फाइंड दैट देयर वाज अ मेंशन अबाउट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन. शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन का टर्मिनोलॉजी है लेवल 1 में भी, अभी 2024 में तो और ज़्यादा है, और पेंशन के बारे में भी था लेवल 1 में. तो लेवल 2 में इन्होंने एक्स्ट्रा स्टफ दिया है जो कि लेवल 1 में नहीं है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू माई लेक्चर्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, पेंशन का अकाउंटिंग बहुत बढ़िया से कवर्ड है.
बहुत बढ़िया से, मतलब बहुत ही डीपली नंबर्स लेके प्रेजेंट वैल्यू करके कैलसी पे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करा के पेंशन अकाउंटिंग कवर्ड है। उस पर भी कॉमा फुल स्टॉप एक्स्ट्रा हो सकता है, डोंट वरी। बट जो शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन है वो लेवल 2 में टच अपॉन था, जो कि अब लेवल 1 में चला गया। जो शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन है वो लेवल 2 में पहले टच अपॉन था, जो अब लेवल 1 का पार्ट हो गया। अब ये लोग शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन में डीपली चले गए हैं, डीपली। ओके, शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन इज वेरी वेरी deep at level 2. So this chapter basically consists of two main portions. One is share based compensation. For the sake of brevity, let's call it SBC, share based compensation, SBC. And the other part is post employment benefits. I mean to say pension and healthcare benefits. Post employment benefits, PEB. तो शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन SBC, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स PEB, इन दोनों के ऊपर फोकस है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो PEB है ना, पेंशन, वो वाला पार्ट क्लासेस से बहुत बढ़िया से हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा स्टफ होगा, कॉमा फुल स्टॉप, वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। बट जो शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन है वो जो अपना क्लासेस है उन लेक्चर से नहीं होगा, उससे केवल फील आएगा, इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए तन्मय ने जब पूछा कि आई हैव नॉट डन द लेक्चर्स, कैन आई वॉच टुडेज क्लास एंड अंडरस्टैंड, आई सेड यस, you can understand. Sit with common sense and confidence, you will understand. तो इन्होंने टॉपिक में कोशिश क्या किया है कि आपको ये बता पाएं कि IFRS और थोड़ा सा US गैप का अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है रिगार्डिंग शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अकाउंटिंग। दूसरा, आप उसको एनालाइज कैसे करोगे, हाउ विल यू एनालाइज इट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू एनालाइज यू नॉट अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स। एंड एनालाइज करने के बाद आप उसका मॉडलिंग कैसे करोगे। तो अकाउंटिंग एनालिसिस मॉडलिंग, अकाउंटिंग एनालिसिस मॉडलिंग, 3 पार्ट हो गया। अकाउंटिंग, IFRS का क्या गाइडलाइन है रिगार्डिंग शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, ठीक है, US गैप कहाँ सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट एनालिसिस, क्या ड्राइवर्स है, क्या क्या छोटे पॉइंट्स देखने हैं उसके अंदर, ओके, उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब या मॉडलिंग। सो 3 पार्ट, अकाउंटिंग, एनालिसिस एंड मॉडलिंग। ऑन व्हाट, ऑन शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एज अ स्टार्टर, जस्ट बिगिन करने के लिए फर्स्ट LOS में दे हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। ओके, जो फर्स्ट वाला LOS है उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, कॉन्ट्रास्ट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। सेकेंड LOS, शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज ऑल अकाउंटेंसी। थर्ड पार्ट, explain how to forecast share based compensation expense and shares outstanding in a financial statement model and their use in valuation। तो ये जो सेकेंड LOS और थर्ड LOS है यही डीपली चला गया शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन में। फिर जो फोर्थ वाला, एक्सप्लेन हाउ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज वेरी वेरी थरली कवर्ड इन द एग्जिस्टिंग क्लासेस। एक्सप्लेन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन कंसिडरेशंस फॉर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसमें कुछ ऐड करना है, इसमें कुछ ऐड करना है। तो तन्मय, when we go to the post employment benefit वाला part, the last LOS, you can't understand the last LOS without doing the existing lectures which are there, okay? So ये LOS दिया हुआ है, ये 5 LOS है। अपना जो फोर्थ वाला LOS है, फोर्थ, जो कि बहुत बड़ा है एक्चुअली, सिंबल LOS, वो बढ़िया से कवर्ड है क्लास में। फिफ्थ वाला एकदम इजी है, वो भी कवर्ड ही है क्लास में, पर कुछ एक्स्ट्रा बताना है। सेकेंड और थर्ड LOS जो है वो मेन स्टडी करना है अपने को, और फर्स्ट वाला LOS तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो चैप्टर को एक बार डिवाइड करें, बिकॉज इफ यू डोंट राइट एनीथिंग मेनी पीपल फील दैट पता नहीं क्लास में क्या हुआ था। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। Sorry, let's write down employee compensation.
तो इसमें नंबर 1 टाइप्स, नंबर 2 SBC शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, नंबर 3 पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन में अकाउंटिंग एनालिसिस मॉडलिंग, उसमें भी अकाउंटिंग एनालिसिस मॉडलिंग, अकाउंटिंग एनालिसिस मॉडलिंग, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए। पीईबी वॉज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब पेंशन, एसबीसी वॉज शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, एंड टाइप्स माने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन जो LOS-A है। ठीक है ना। नाउ दिस वन ओवर हियर is LOS-A, this one, sorry, this and this, LOS-B, this is LOS-C, this one and this one, LOS-D, and this one, LOS-E. अगर किसी एक पर्सन का वीडियो स्टकअप हो रहा है तो देयर इज एन इंटरनेट इश्यू एट योर एंड बिकॉज अदर्स आर एबल टू डू इट स्मूथली. सो दिविजा जैन, यू मे वॉच द क्लास व्हेन इट गेट्स अपलोडेड टुनाइट. ये 5 LOS है. इनमें से this one LOS-D is covered in class and this is very big. लगेगा एक ही LOS है but this is very very big. LOS-E is partly covered, partly. LOS-B और C को मैं अनकवर्ड मान रहा हूं. LOS-A तो इंट्रोडक्शन है. ओके, तो करते हैं. आई होप कॉपी हो गया. नाउ टाइप्स ऑफ कॉम्पेंसेशन में अगर अपने को टाइप्स बोलना होता ना तो अपने डिवाइड करते 3 में. लिखना मत. एक होता वेजेस एंड सैलरी सा जो पे करते हैं एम्प्लॉइज को. दूसरा होता शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से. तीसरा होता पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो पेंशन वगैरह देंगे रिटायरमेंट में. मैं तो 3 में क्लासीफाई करता. ठीक है ना. इन्होंने 3 के बजाय 5 में क्लासीफाई कर दिए. इन्होंने 3 के बजाय 5 में क्लासीफाई कर दिया. यू बी जनरल प्लीज बिकॉज यू विल रिमेंबर थिंग्स दैट नेचुरली कम टू यू. तो एक है वेजेस एंड सैलरी, दूसरा है शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन, तीसरा है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. मेरे ख्याल से 3 वॉज सफिशिएंट बट इन्होंने 5 में क्लासीफाई कर दिया. जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना वेजेस एंड सैलरी का, जो फीलिंग आया कि इंप्लॉइज को यार जो जनरल देते हैं, उसको 3 में कर दिया. एक कर दिया शॉर्ट टर्म, एक कर दिया लॉन्ग टर्म, एक कर दिया टर्मिनेशन. एक कर दिया शॉर्ट टर्म, एक कर दिया लॉन्ग टर्म, एक कर दिया टर्मिनेशन. शॉर्ट टर्म माने एक्चुअली वेजेस एंड सैलरी जो पे करते हैं अपने, उसमें शॉर्ट टर्म बोनस भी आ गया. ओके, जो पेड लीव होता है ना वो भी आ गया, वगैरह वगैरह. शॉर्ट टर्म 12 महीने से कम थी के अंदर. लॉन्ग टर्म में क्या आ गया? लॉन्ग टर्म में आ गया कोई पेड सबैटिकल ले रहे. यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज अ सबैटिकल? यू आर वर्किंग इन अ कंपनी फॉर ईयर्स एंड यू टेक अ 2 months ऑफ or 3 months off, that's called a sabbatical. You get a payment for the same. ठीक है, पेड sabbatical या पेड डिसेबिलिटी. तो ये थोड़ी एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, लॉन्ग टर्म ये आने वाला नहीं है बट जस्ट बोला हुआ ऑथर ने. तो क्या करे, अगर अपने अपना ध्यान सही जगह पे डालेंगे नहीं तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा. तो वो लॉन्ग टर्म वाला पाथ फालतू में दिया है. ओके, sabbatical एंड क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी नहीं आएगा, वो गारंटीड. उसके अलावा दे हैव टॉक्ड अबाउट टर्मिनेशन बेनिफिट. वो जो VRS वगैरह होते हैं ना, सेवरेंस पैकेज, जो एम्प्लॉइज को हटाते हैं. अभी सो मेनी पीपल, सो मेनी कंपनीज आर लेइंग ऑफ. 2023 में दे हैव लेड ऑफ, 2024 दे मे हैव दे लेड ऑफ. सॉरी फॉर डाइवर्जन बट यू नो
the level of efficiency improvement and productivity gain that's happening in the globe, especially for those countries which are adopting technology and artificial intelligence. माने मैं क्या बोलूँ, अपने तो लेवल 2 में भी है, लेवल 1 में भी है कि y is equal to y by L into L, correct? GDP, real GDP is equal to productivity, that is y by L into L. The growth rate of GDP depends on two things, growth rate of labor plus the growth rate of productivity. Now, even though people talk about population, कि सर वेस्टर्न कंट्रीज का, यूएस वगैरह का डेमोग्राफिक्स अच्छा नहीं है, सब बूढ़े लोग हो गए and all that stuff, but the point is that they have worked out a mechanism by which the GL wala part is not a dominating factor now. What is dominating is the GY by L wala part. So because of whatever has happened in the last 2-3 years and uska culmination into AI, the law of diminishing returns that we used to study na, कि ultimately जाके तो average cost कब ऊपर जाएगा ही ना. It doesn't seem like large companies के लिए average cost is just coming down, coming down, coming down, coming down, coming down. And that's the reason why we have concentration of power. Bigger companies are becoming more and more stronger and efficient. Okay, they are becoming lean and fit. Anyways, so मैं कहाँ से कहाँ चला गया? So I was trying to explain to you that termination benefit. हाँ, termination. तो मेरे ख्याल से मैं जब types बोलता, okay, Neeraj Agarwal is saying, is this class for level 3? No, Neeraj, this class is not for level 3. But I think you are in level 3 and you've got access to this class. So that's a technical glitch in our software which will be updated to the relevant staff. Thanks for informing. ठीक है, this class is not for level 3. क्या कोई level 1 का student भी ये class कर रहा है क्या? एक मिनट, take a pic please. क्या कोई level 1 का student भी ये class कर रहा है क्या? लेवल 3 को तो एक्सेस मिल गया दिख रहा है, लेवल 1 का कोई स्टूडेंट है क्या? आई होप नहीं है. नीरज, यू कैन स्किप द क्लास, आपके सेंस का नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास फ्री टाइम है एंड यू रियली फील दैट चलो करते हैं ना क्लास, क्या हर्ज है? आफ्टर ऑल लेवल 3 को सब कुछ चाहिए. ठीक है. सो आई वाज सेइंग दैट इन्होंने कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस का जो टाइप्स है ना वो 5 में क्लासीफाई किया है. मेरे ख्याल से 3 है. एक है नॉर्मल जो जानते हैं वेजेस एंड सैलरी, दूसरा है एसबीसी शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन और तीसरा है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. तो जो फर्स्ट वाला है ना वेजेस एंड सैलरी जो अपने जानते हैं उसको 3 में कर दो. एक है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, एक है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और एक है टर्मिनेशन बेनिफिट. टर्मिनेशन बेनिफिट कौन नहीं ध्यान करेगा? द सेवरेंस पैकेज, द वीआरएस एंड ऑल दैट, द लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज दैट्स हैपनिंग. ठीक है. अतिशा सिंगई, कैन यू प्लीज शेयर द बोर्ड नोट्स टू अस आफ्टर दिस क्लास? मैंने बोर्ड में ऐसा लिखा ही क्या है अतिशा? आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग. ठीक है. वैसे आई विल शेयर इधर बोर्ड नोट्स या समबडी एल्स का लिखा हुआ. ठीक है. लेट्स फोकस, वी आर नॉट राइटिंग टू मच. ये वो वाला हाल थोड़ी है जहाँ डिक्टेट करते थे. एम्प्लॉई कैन बी डिफाइंड एज एंड कॉम्पेंसेशन कैन बी डिफाइंड एज, देयरफॉर एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन बिकम्स दिस. एनीवेज, सो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल यू फाइंड दैट कोई क्रेडिबल चीज़ लिख रहे हो, बिकॉज फालतू में मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा. ठीक है ना. या सो अपना क्लासिफिकेशन क्या हो गया? LOS-A चालू हो रहे हैं. टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन. तो मैं 3 में डिवाइड कर रहा हूं, इन्होंने 5 में किया बिकॉज 3 मेरे लिए नेचुरल है. एक है वेजेस एंड सैलरी टाइप, मैंने टाइप लिखा है तो टाइप मतलब बोनस फोनस हेन तेन. दूसरा हो गया SBC शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन. तीसरा हो गया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. ओके, पेंशन जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद, हेल्थ के बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वो सब. वेजेस एंड सैलरी टाइप इज नॉट द ऑथर का वर्ड. ओके, इसमें इन्होंने 3 दिए है. वन इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट, द अदर इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड द थर्ड इज टर्मिनेशन बेनिफिट. टर्मिनेशन तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्चुअली वो वेजेस एंड सैलरी हो गया. और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ओके इज लॉन्ग टर्म सबैटिकल, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का जो पेमेंट होता है, एम्प्लॉय डिसेबिलिटी हो जाता है तो. ठीक है. और टर्मिनल बेनिफिट में यू नो सेवरेंस पैकेजेस, सेवरेंस
pay, VRS, etc. I am not good at all this BCom types. This is a BCom stuff going on. तो मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ इसमें सर, कोर में तो और भी कुछ लिखा हुआ था. I am not supposed to be charged for that because I will devote my energy to places where it is actually required. ठीक है ना? Okay. उन दोनों का तो डिस्कशन जोर का होगा ही, शेयर बेस्ड कॉम्पेंसेशन का, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का. इन दोनों को साइड को हटाएं ना. कौन सा एकदम भी काम का नहीं है? ये एकदम भी काम का नहीं है, ये एकदम भी काम का नहीं है, फालतू का लिखा है. ये थोड़ा सा जस्ट प्रोवाइड्स अ पुश, थोड़ा सा काम का है. ओके, प्रोवाइड्स अ पुश. ये तो बहुत ज़्यादा काम का है और ये भी बहुत ज़्यादा काम का है. इंपॉर्टेंस लेवल मैंने मार्क किया है. आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं जानना है, बिलीव मी, आई कांट एक्सपेक्ट. इट विल बी लाइक अ वंडर फॉर मी अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होता है ऐसा एग्जाम में सम आ जाता. तो ऐसा नहीं पॉसिबल है CFA एग्जामिनेशंस का लेवल. तो टाइप्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, करेक्ट है? ओके, नाउ अकाउंटिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन के अकाउंटिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल. It may seem by the word, oh, yahi to, but the point is that we often forget and we keep on learning so many things and not forgetting the basic thing. Matching principle. Employee जिस साल काम किया है, जिस पीरियड में काम किया है, उसका बेनिफिट कंपनी ने उस पीरियड में एंजॉय किया है, तो उसी पीरियड में हम लोग चार्ज करना चाहेंगे इनकम स्टेटमेंट को. एम्प्लॉय जिस पीरियड में काम किया है तो उसका बेनिफिट उस पीरियड में एंजॉय किया है कंपनी. इनकम स्टेटमेंट इज एंजॉइंग द बेनिफिट इन दैट पीरियड. वी वुड लाइक टू चार्ज द इनकम स्टेटमेंट, चार्ज द रेवेन्यू इन दैट पीरियड ओनली. आई कैन नॉट डिफाइन द मैचिंग प्रिंसिपल ऑब्वियसली. ठीक है, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू आर ओके एंड यू विल गिव रिस्पेक्ट मेंटली टू इट. मैचिंग प्रिंसिपल करेक्ट है. वी आर डूइंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. फॉर दोज ऑफ यू जिनको कोर रीडिंग में वो टेक्स्ट बॉक्सेस पसंद आते हैं जहाँ पे रियल लाइफ का कुछ लिखा रहता है ना, फॉर दोज ऑफ यू जिनको कोर रीडिंग में टेक्स्ट बॉक्सेस समझ में आते हैं जहाँ पे रियल लाइफ का कुछ लिखा रहता है एंड दे फील एक्साइटेड, you will really enjoy. They have written a text box in which they have shared with us that 2004-5 के पहले there used to be intrinsic value accounting. तो जहाँ पे अगर suppose आप लोग you all are the top executives and technical guys in our company, you all are, all of you all who are doing classes today, आप कंपनी के CEO, CFO, CTO, ठीक है, COO ये सब हो, या कंपनी के टेक्निकल स्टाफ हो, R&D के स्टाफ हो, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, हमने आपको स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट किया. स्टॉक ऑप्शंस यानी कॉल ऑप्शन, which means you have the right to buy the shares of the company at a predetermined strike price. Of course, this is a non-tradable call option. What is your first feeling? ये जो कॉल ऑप्शन कंपनी ग्रांट करेगा एम्प्लॉइज को, दिस इज यूजुअली ATM, OTM और ITM. अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट कर रहा है, बाय कॉमन सेंस जनरली कैसा ऑप्शन ग्रांट करता होगा? ITM, ATM, OTM. व्हाट डू यू थिंक? यस, OTM. जनरली OTM ग्रांट करता होगा आउट ऑफ द मनी कि भाई शेयर का दाम चल रहा है $64, बट जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज $80 और $75. सो वी आर ट्राइंग टू टेल द एम्प्लॉइज दैट इफ द शेयर प्राइस गोज अप above 75 और above 80, ही विल गेट द डिफरेंस. ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, ठीक है, 75 या 80, विच मीन्स इट्स आउट ऑफ द मनी. तो अकॉर्डिंगली सिंस इट वॉज आउट ऑफ द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू 0. कॉल ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? 0 ना, बट उस पर टाइम वैल्यू है बिकॉज 4-4, 5-5, 7-7 साल का ऑप्शन है. यू अंडरस्टैंड? अगर 7 साल का ऑप्शन को तो इंडिया में लीप्स बोलते हैं, यहाँ तो अपने 1 महीने 2 महीने 20 दिन का होता है. तो अकॉर्डिंगली उस जमाने में 2004-5 के पहले जब इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग था, जब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग नहीं था, जब इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग था, उस समय
when the company used to grant stock options to the employees, OTM stock options, since intrinsic value was 0, so in that case, what was the expense reported? 0. Since intrinsic value was 0, therefore expense reported was 0. Think about it. Intrinsic value was 0, therefore expense reported was 0 उस जमाने में. जबकि anybody with sound economic principles and economic rationale will understand, no sir, what is it happening? We are providing employees with a lottery का ticket, and lottery का ticket मुफ्त का थोड़ी होता है just because लॉटरी थोड़ी उठेगा उसका probability लो है. It doesn't happen that way. लॉटरी का टिकट का दाम होता है, ठीक है ना. तो anyways, so then the world shifted to fair value accounting and they've discussed. US कांग्रेस पे कितना झमेला हुआ था इस चीज का, ठीक है. They said that स्टार्टअप्स एकदम क्रश हो जाएंगे बिकॉज अगर स्टार्टअप्स को ऑप्शन को वैल्यू करके पीएल में डेबिट करना पड़ा, यानी ऑप्शन का ब्लैक शोल्स मॉडल से वैल्यू निकालेंगे, और अगर अपने से 5 लाख ऑप्शंस इशू किए और ऑप्शन का वैल्यू आया से $12, तो 5 लाख इंटू 12 यानी कि 60 लाख का एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा पीएल में. ओके, बिकॉज आपने वेजेस एंड सैलरी के लीव में ऑप्शंस दिया है ना. आपने क्यों ऑप्शंस दिया? बिकॉज आप वेजेस एंड सैलरी कमती दे रहे हो. बिकॉज अगर आप वेजेस एंड सैलरी देते तो वो पीएल में डेबिट होता. अगर वेजेस एंड सैलरी पे करते तब तो वो पीएल में डेबिट होता. बट आप उनको वेजेस एंड सैलरी नहीं दे के ऑप्शंस दे रहे हो और पीएल में फिर कमती वाला वेजेस एंड सैलरी डेबिट कर रहे हो. उसके कारण प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ईपीएस ज्यादा आ रहा है, एवरीथिंग इज ओवरस्टेटेड. बट जब वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा फ्यूचर में, तब अचानक से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा एंड ईपीएस धड़ाम से गिरेगा. सो ऑल दोज पीपल, बेचारे मासूम जो लोग आज का प्रॉफिटेबिलिटी देख के कंपनी का शेयर बाई कर लेंगे, दे विल लूज इन द लॉन्ग टर्म ना. एंड रेगुलेशंस आर अल्टीमेटली डिजाइन्ड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लूजिंग इन द लॉन्ग टर्म. प्लीज अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी, इट्स नॉट रिटन इन द बुक, तो इन दैट केस आप केवल बीटिंग अराउंड द बुश करते रहो. क्या बोला, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं. यू अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी. अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग करेंगे तो मैं बोलना चाह रहा हूं कॉल ऑप्शन जो इशू किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पीएल में डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है. तो बट आपने वेजेस एंड सैलरी कमती दिया उन लोग को, बिकॉज क्या बोला, भाई तेरे को कॉल ऑप्शन इशू कर रहे हैं ना, अपनी तो चला रहे हैं कंपनी को यार, अपने बढ़ाएंगे ना. तो वेजेस एंड सैलरी कमती डेबिट हुआ, रेवेन्यू पूरा ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है. राम श्याम घनश्याम शेयर बाई कर लिए देख के, वाह कौ तो भालो कंपनी, बाई कर लिए. एंड 2 साल बाद 3 साल बाद वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है, इंप्लॉइज लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, इतना सारा शेयर इश्यू होता है, ईपीएस धड़ाम से गिरता है एंड द शेयर प्राइस क्रैशेस एंड राम श्याम घनश्याम गया उसका पैसा. सो देयरफॉर वी वुड लाइक टू इंश्योर दैट ये नहीं अलाउ करें. वी विल चार्ज द पीएल अकाउंट फॉर इट. एंड इनफैक्ट जो कॉल ऑप्शन इश्यू हुआ है, आपको पता है लेवल 1 से दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियली डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज. जो कॉल ऑप्शन इश्यू हुआ है, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियली डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज. भाई ध्यान आ रहा है. ट्रेजरी स्टॉक मेथड लेवल 1, तो अकॉर्डिंगली डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे कि जहां पे ये अज्यूम करते हुए कि अगर कन्वर्ट हो गया तो ईपीएस क्या हो जाएगा. बेसिक ईपीएस 37, डाइल्यूटेड ईपीएस 29. तो राम श्याम घनश्याम तीनों को दिख रहा है, नहीं यार देख इतना शेयर्स और निकल सकता है, देयरफॉर ईपीएस इतना गिर सकता है. तो मैं जब पी रेशियो इनटू ईपीएस भी कर रहा हूं तो डाइल्यूटेड ईपीएस के बेसिस पे भी प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूं और सोचूं. एम आई कम्युनिकेटिव? एम आई कम्युनिकेटिव समझ में आया क्या? एम आई कम्युनिकेटिव समझ में आया क्या? Okay, very good. So do not forget this so much. Just because of the extensive stuff which is written in the core, you can't ignore the basic common sense that is running through. That's the mistake that happens. तो पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद बीच में उठ के वॉक करना चाहिए और अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि यार बोलना क्या चाह रहे थे, ठीक है. तो बड़ा बड़ा बात हो गया, IFRS, US गैप, एटा ओटा, बट व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इट, ठीक है ना. ओके चलिए, तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है. मैंने फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का जरा सा एक वो दिया है, देयर इज अ बॉक्स इन द कोर. माने इट इज नॉट नेसेसरी टू रीड, बट इन केस यू वांट टू रीड द बॉक्स इन द कोर, मैं नहीं बता सकता हूं कौन सा बॉक्स है, दिखा के भी कोर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इजीली खोज लोगे. इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग वर्सेस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग 2004-5 के पहले चलता था, ठीक है. तो
तो एवोल्यूशन जब पता चलता है ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो एज एन एनालिस्ट वी पीपल, नॉट द चार्टेड अकाउंटेंट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट देम, बट वो चार्टेड अकाउंटेंट्स तो इतने बिजी है ना एंट्री मारने में, ओके, बैलेंस शीट टैली करने में, कि वो एनालिसिस करना भूल ही जाते हैं कि चीजों में हो रहा क्या है. वी गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज बिकॉज वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग. अंडरस्टूड? सो मोर प्रिविलेज्ड सिचुएशन में है. If we talk about the fact that AI will drive out jobs, the first jobs that will get totally driven out is that of accountants. जो भी प्योर अकाउंट्स का काम कर रहा है उसका जॉब कैसे बचेगा इन दिस वर्ल्ड ऑफ एआई? नहीं बच सकता. देयर इज नो ब्रेन, देयर इज नथिंग इन्वॉल्व, नो क्रिएटिविटी, नथिंग. ऑफ कोर्स क्रिएटिव डिजाइनिंग है, पर उसके लिए ब्रेन अलग लेवल का चाहिए एनालिस्ट का. देयर इज अनदर पर्सन, फॉलो हिम, लिसन टू हिज वीडियोस वंस और ट्वाइस, कुंतल शाह. I think that's the name, Kuntal Shah. Recently, Mahalakshmi of CNBC also took his interview, Kuntal Shah, and great stuff he was speaking about how to detect window dressing in companies. तो क्या होता है, अपने जो पढ़ रहे हैं CFA में वो प्रैक्टिकली किसी का बोला हुआ, देन अपने देखते नहीं यार हमारा CFA में तो और डीपर बोला हुआ था. बहुत तरह का एक पॉजिटिव फील आता है. एंड आई थिंक दोज आर द पॉजिटिव फील दैट मेक द स्टडीज नॉट फील लाइक स्टडीज, दैट सीम्स दैट यार स्टडी थोड़ी हो रहा है, आई एम बिल्डिंग माई फ्यूचर. ठीक है, तो ओके चलिए. तो प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. वी विल वैल्यू द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट. ठीक है, तो आई विल टॉक अबाउट द ग्रांट डेट एंड वी विल देन एक्सपेंस इट इन द PL अकाउंट ओवर द वेस्टिंग पीरियड, द सर्विस पीरियड ऑफ द एम्प्लॉइज, ओवर द वेस्टिंग पीरियड. PL में डेबिट करते जाएंगे. मेरे एग्जांपल में $12 वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन आया था, द OTM कॉल ऑप्शन जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 था, और 5 लाख ऑप्शंस इशू किए थे. 5 × 12 60 लाख, और अगर द वेस्टिंग पीरियड इज 5 years तो 60 लाख बाई 5 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख PL में डेबिट होगा. समझ गए? तो प्रॉफिट विल कम डाउन. हम लोग उसको वेजेस एंड सैलरी मानेंगे, उसको वेजेस एंड सैलरी मानेंगे. ठीक है ना? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. ओके, very important, dates and terminology. Dates and terminology. There is a grant date. There is a vesting period. Some people call it servicing period, that's fine. And there is a settlement date. Measurement of SBC is done on the grant date. Measurement. Expensing or recognition is done in the vesting period. Amortization PL में डेबिट होगा हौले हौले. Equity transfer entries. Equity transfer entries are done on the settlement date. I am not able to explain the last part. फर्स्ट और सेकंड का फीलिंग आ गया होगा. मेजरमेंट, सर हमने कॉल ऑप्शन इश्यू किया 5 लाख, ब्लैक शोल्स मॉडल से कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाला 12, तो 5 लाख इंटू 12. सर हमने कॉल ऑप्शन नहीं इशू किया, हमने एम्प्लॉयज़ को सीधा शेयर्स इशू किया, हमने सीधा एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू किया, शेयर ग्रांट्स. ठीक है, शेयर का दाम उस दिन 300 था, 300, तो 5 लाख शेयर्स इशू किया 300 का, 5 लाख 300 का, तो 5 लाख इंटू 300, वो आ गया मेजरमेंट. फिर वो पीएल में डेबिट होगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड, पर उनको एक्चुअली इशू करेंगे यहाँ पे जाके. तो यहाँ पे क्या किया था, अग्री टू इशू किया था, भाई तेरे को देंगे इतना वेजेस, इतना तेरे को क्या बोलते हैं शेयर इशू करेंगे, ओके है ना, तुम काम करेगा ना. तो जहाँ पे अग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, the terms and conditions, I'll give you this much wages, I'll give you this much of options, I'll give you this much of stock grants, that is the grant date. On that date you will value
Now this is philosophically very important कि valuation is on the grant date and subsequent period में obviously the value of the call option will change. जो मैं $12 बोला, the share price will change. Those changes will not affect the measurement of the old grant. जो ग्रांट का मेजरमेंट किए थे ना 5 लाख इंटू 12 60 लाख, सब बाद में तो $13 हो गया, वॉलेटिलिटी बढ़ गया, शेयर प्राइस बढ़ गया, डजेंट मैटर. जो ओरिजिनल ग्रांट इश्यू कर दिए 5 लाख का, उसका 5 लाख इंटू 12 ही वैल्यू होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. आई एम सॉरी कि विदाउट डिटेल्स में गए हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पहले बोल रहा हूं, बिकॉज क्या पता वो डायरेक्टली 90 डिग्री आपको हिट कर जाए एंड यू विल इंश्योर दैट यू अवॉइड मिस्टेक्स. तो ऑप्शंस के केस में ऑप्शन का वैल्यू ग्रांट डेट को फिक्स हो गया, और स्टॉक ग्रांट्स के केस में शेयर प्राइस ग्रांट डेट को फिक्स हो गया. तो उसके हिसाब से कितना अमाउंट अग्री कर दिए एम्प्लॉय को देंगे वो डिसाइड हो गया. फिर वो वेस्टिंग पीरियड में एमोटाइज होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और पे करेंगे वो लोग को सेटलमेंट डेट को. ऑफ कोर्स ऑप्शंस के केस में ये सेटलमेंट डेट नहीं होगा, देयर विल बी अ सेटलमेंट पीरियड ना, बिकॉज आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड ही कैन एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. द बॉल इज इन हिज कोर्ट. भाई तेरे पास कॉल ऑप्शन है, तुम चाहे तो शेयर बाई कर सकता है. कब? वेस्टिंग के बाद. तो एक पीरियड होगा ना, ओके. एक्सपायरी, ये एक्सपायरी डेट हो गया, एक्सपायरी डेट ऑप्शंस के केस में. तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये केवल ऑप्शंस के केस में है. तो सेटलमेंट यहां नहीं है, ये सेटलमेंट पीरियड है. दिस बिकम्स द सेटलमेंट पीरियड, डेट पीरियड. तो यहां पे वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ कॉल को एक्सरसाइज करेगा. तो जिस दिन वो एक्सरसाइज किया, अगर किया तो उस दिन उसको शेयर इश्यू हो गया, राइट टू बाय, ही बॉट द शेयर्स. तो जो थोड़ा बहुत लिखा वो काम का है. ग्रांट डेट को मेजर करना है, और मेजर करने के बाद उसका प्राइस बाजार में चेंज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. जो मेजर किए उसको एमोटाइज करना है स्ट्रेट लाइन. कहां पे? वेस्टिंग पीरियड में. वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग मीन्स एंटाइटलमेंट. वेस्टिंग मीन्स एंटाइटलमेंट कि ग्रांट मतलब बात हुआ था कि आपको ये मिलेगा, पर आपको कब मिलेगा? प्रोवाइडेड आप इतने साल तक कंपनी में रहोगे. दैट्स कॉल्ड अ सर्विस रिक्वायरमेंट. आप इतने साल कंपनी में रह के काम करोगे, दैट्स अ सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है. एंड अगर ईपीएस कंपनी का इतना % बढ़ गया, तो अगर आरओआई कंपनी का इतना हो गया, तो अगर शेयर प्राइस इससे ज्यादा हो गया, तो दैट्स कॉल्ड अ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. तो आई एम ट्राइंग टू से व्हेन विल यू बिकम एंटाइटल्ड टू द ग्रांट्स दैट वी एग्रीड अपॉन ओवर हियर. इट इज अ फंक्शन ऑफ सर्विस, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस. यूजुअली परफॉर्मेंस का क्वेश्चन में तो नहीं आता है, सम्स में, बट थियरी में यस. तो सर्विस रिक्वायरमेंट हो सकता है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हो सकता है. सर्विस मतलब 4 साल काम किए तो, और परफॉर्मेंस मतलब अगर ईपीएस या आरओआई या आरओई या शेयर प्राइस इतना ज्यादा हो गया तो, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्शन हो गया. दर्शन राठौड़, सर अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट का क्या इफेक्ट होगा? तो दर्शन, वी विल कम टू दैट. वैसे दर्शन का क्वेश्चन क्या है कि सर ये ऑप्शन ग्रांट कर दिए थे, तो 60 लाख को आपने 60 लाख बाय 5, 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख पीएल में डेबिट कर दिया. तो पीएल में डेबिट कर दिया तो जाहिर है बैलेंस शीट में भी गया होगा. इट्स कॉल्ड अ कॉम्पेंसेशन रिजर्व. मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं. तो 60 लाख का कॉम्पेंसेशन रिजर्व में अमाउंट खड़ा है, और पीएल बेचारा सफर कर लिया, और 60 लाख का रिजर्व खड़ा है, ठीक है, अपना एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड. और उस केस में शेयर का दाम डूब गया. ये बोलना चाह रहे सा से स्ट्राइक प्राइस $300 था ना, शेयर का दाम नीचे रह गया, तो द कॉल वाज नॉट एक्सरसाइज्ड. तो 60 लाख का अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व में खड़ा है. क्या करना है उसका, ये दर्शन पूछ रहा है. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट दर्शन इज आस्किंग? हम लोग एम्प्लॉइज को 5 लाख कॉल ऑप्शन इश्यू किए थे ग्रांट डेट पे. उस दिन ऑप्शन का वैल्यू $12 था, तो 5 लाख इंटू 12, तो 60 लाख का एक तरह से वेजेस एंड सैलरी अग्री किए थे पे करना. बट मैचिंग प्रिंसिपल के अनुसार वो पीएल में तो डेबिट होगा जब वो काम करेगा, तो 5 साल का बाद था. तो 60 लाख डिवाइड बाय 5, 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख पीएल में डेबिट करते गए. एंट्री क्या हुआ? कोई बहुत ही अकाउंट्स किया हुआ है तो एंट्री हो गया कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट, शेयर कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट. अब अगर कोई आईआईटीएन या कोई इंजीनियर स्टूडेंट ऐसा, आई डोंट अंडरस्टैंड डेबिट क्रेडिट, भुजिया खाओ, फर्क ही नहीं पड़ता है. यू हैव रिड्यूस्ड योर प्रॉफिट, यू हैव रिड्यूस्ड योर
retained earning, your profit. तो accordingly the contra entry to balance the A equal to L plus E होना पड़ेगा ना. A equal to L plus E, तो इक्विटी कम हो गया बिकॉज आपने प्रॉफिट कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होना पड़ेगा, तो इक्विटी को बढ़ाएंगे बाय द नेम ऑफ कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बाय द नेम ऑफ कॉम्पेंसेशन रिजर्व. तो दर्शन राठौड़ का क्वेश्चन है कि सर 5 साल में पहुंचते पहुंचते 60 लाख से आपने कॉम्पेंसेशन रिजर्व को एक्यूमुलेट कर लिया था, इट्स लाइक रिजर्व्स एंड सरप्लस. पर सपोज उसके बाद ये जो पीरियड था ना येलो वाला, इस पीरियड में शेयर का दाम क्रैश हो गया, एंड जाहिर है कॉल ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज होगा, नहीं एक्सरसाइज हुआ, वो लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक दो. तो उस केस में दर्शन इज आस्किंग यहां पे जाके एक्सपायरी डेट पे जाके बैलेंस शीट में 60 लाख खड़ा है, उसका क्या करेंगे, दैट इज दर्शन का क्वेश्चन. तो दर्शन को एक बार आंसर कर दूं, सिंस मैंने 5 मिनट इन्वेस्ट ही कर दिया समझाने में उसका क्वेश्चन. दर्शन वो 60 लाख का कुछ नहीं करेंगे, वो वही रहेगा. वो 60 लाख का कुछ नहीं करेंगे, वही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल फ्यूचर में कंपनी डिसाइड करता है कि वो 60 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, या फिर उसका कुछ और काम करेंगे. दैट्स डिपेंड्स अपॉन क्या डिसाइड होगा. फ्रॉम एन अकाउंट स्टैंड पॉइंट कुछ नहीं होगा. इफ यू आर थिंकिंग सर वो वापस से पीएल में रिवर्स बैक होगा क्या, नो, वो रिवर्स बैक नहीं होगा. दर्शन राठौड़, हैव आई बीन एबल टू आंसर यू? एंड अदर्स प्लीज, हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट अप बाय दर्शन एज वेल एज माय रिप्लाई टू हिम? कि the compensation reserve created as a result of call option, okay, stock option. What if the call options expire worthless? What do we do of that compensation reserve? The answer is do nothing. The answer is do nothing. Let it remain over there unless or until it is redistributed or reclassified. Riddhi Kapoor is saying, फिर फायदा क्या हुआ हम वेजेस सैलरी का ... no profit to employees. रिद्धि कपूर तो अलग ही चीज में चली गई. रिद्धि कपूर तो अलग ही चीज में चली गई. रिद्धि कपूर बोल रही है सर कॉल ऑप्शन इशू है एम्प्लॉइज को और देखिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो फायदा क्या हुआ. तो रिद्धि ये तो वही बात हो गया कि एक कंपनी का डिबेंचर इशू हो रहा था और इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा था. एक कंपनी का डिबेंचर इशू हो रहा था और इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा था. डिबेंचर में आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा था, इक्विटी शेयर्स में डिपेंड करता है. तो इन दैट केस आप कौन सा बाई करोगे, डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स? सिंस अपने सीएफए के स्टूडेंट है, अपने को बोलना चाहिए सर दोनों बाई करेंगे, बिकॉज एसेट एलोकेशन, कुछ पैसा डेट में लगाते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा इक्विटी में. तो मैं कुछ पैसा डिबेंचर में, कुछ पैसा इक्विटी में लगाऊंगी. पर इक्विटी में अगर लगाए और उसके बाद कंपनी का शेयर का दाम बढ़ा नहीं तो क्या फायदा हुआ, इससे बढ़िया डिबेंचर में लगाए थे. तो कभी भी अपने अपसाइड एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें सर्टेनिटी थोड़ी आता है. यू गॉट कॉल ऑप्शंस, दे कुड हैव गॉन टू व्हाट वैल्यू, क्या पता जो इलॉन मस्क है या जो भी टॉप 50 सुपर रिच पीपल है, द बिलियनर्स लिस्ट, द ट्रिलियनर्स लिस्ट दैट वी हैव इन द वर्ल्ड, प्लीज चेक their wealth is comprised of what, and you will find that their wealth is comprised of stock grants and stock options that they hold of their company, or those stock options that have been converted by them because the company share went up. So they could not have become wealthy as a result of the high wages and salary. Okay, we can see Elon Musk का sir क्या compensation package है. Go to the details of it and you will find that the compensation package comprises majorly of stock options and stock grants. So you are saying what if the share price doesn't go up? Now that's a risk that we take as a part of the business. That's the risk we take as a part of the business. There is nothing to be sorry, Riddhi. There is nothing to be sorry. It is good that आप genuinely वो question पूछे जो आपके मन में उस समय आया. If I can make it happen, तब तो लाइव क्लास का कोई सेंस है, वरना क्या सेंस है. ठीक है तो ओके, जेन्युइनली आपने वो क्वेश्चन पूछा जो आपके आया. That is an achievement for me, that I feel that yes, I was able to communicate in the class. I was not doing a monologue. अक्षत अग्रवाल, फिर टैक्स से खेलो इंडिया खेलो होगा. टैक्स से खेलो इंडिया खेलो होगा, मेरे को समझ में नहीं है अक्षत आप जो बोलना चाह रहे हो. फिर टैक्स से खेलो इंडिया खेलो होगा, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया. खेलो इंडिया खेलो तो आप मेरा वर्ड यूज करो, दैट्स ओके, बट व्हाट डू यू मीन टू से? फिर टैक्स से खेलो इंडिया खेलो होगा, समझ में नहीं आया. कोई बात नहीं, बीच में ब्रेक भी हो जाता है इस मामले में.
इशिका चावला बोल रही है, शायद वो बोलना चाह रहा है एक्सपेंस ज़्यादा तो टैक्स कमती देंगे, एक्सपेंस ज़्यादा तो टैक्स कमती देंगे. ओके, सो वेरी वेरी गुड. मैंने आई एम रियली रियली हैप्पी दैट पीपल आर स्पीकिंग आउट. ओके, यस, अक्षत भी वही बोल रहा था. सुनिएगा प्लीज, वी आर एंटरिंग इनटू अ थर्ड एरिया, और वो थर्ड एरिया एक्चुअली टॉपिक में इंपॉर्टेंट है. वो थर्ड एरिया टॉपिक में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बीच में आकाश मुखर्जी आपका डाउट आया है, मैं साइमल्टेनियसली 4 डाउट ले नहीं पा रहा हूं, एक्सक्यूज मी फॉर द सेम. बट जो अक्षत और इशिका ने डाउट उठाया है, दैट्स वेरी यूजफुल. इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट क्लास it's a very good ground building. You know how do I do? I build a very solid ground for the way in which we proceed into the chapter. तो इन्होंने बोला है कि सर जो 12 लाख पीएल में डेबिट किए थे, उसके कारण प्रॉफिट कम आया, प्रॉफिट कम आया तो टैक्स कमती देना पड़ा, टैक्स कमती देना पड़ा, पर अल्टीमेटली कॉल ऑप्शन लैप्स हो गया, तो टैक्स तो मस्ती का बचा लिए. पहले बात है, डाउट समझ में आया? तो इशिका अक्षत बोल रहे हैं कि सर जो अपने 12 लाख कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आपने किया, वो पीएल में डेबिट हुआ, उसके कारण प्रॉफिट कम आया, टैक्स कमती देना पड़ा, मजा आ गया. 12 लाख का से 30%, 360 बच गया 5 बार. और बाद में जाके देखा जाए तो आपने तो कुछ भी नहीं दिया एम्प्लॉय को. ओके, तो रिद्धि वॉज थिंकिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू बेचारे. ठीक है, एंड दिस पीपल आर थिंकिंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इन लोग का डाउट? Okay, now if some of you remember my main language in the deferred taxation chapter at CFA level 1, और या कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से नहीं किया, doesn't matter, you should know that financial reporting FR is done on accrual basis, tax reporting is done on modified cash basis, financial reporting is done on accrual basis, tax reporting is done on modified cash basis. cash basis नहीं बोला, modified cash basis, which means पहली बात तो ये है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ये सारा रिडक्शन अलाउ नहीं करेगा. इनकम टैक्स अथॉरिटी वोंट अलाउ 12 लाख का खर्चा इन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, बिकॉज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में वो 12 लाख कैश पेमेंट हुआ है या अक्रूड हुआ है? अक्रूड हुआ है. 12 लाख का कैश पेमेंट नहीं हुआ है, वो अक्रू हुआ है. इनकम टैक्स अथॉरिटी विल ओनली अलाउ इट ऑन सेटलमेंट. इनकम टैक्स अथॉरिटी विल ओनली अलाउ इट ऑन सेटलमेंट. ठीक है, तो वो लोग सेटलमेंट पे अलाउ करेंगे, वो लोग उसको अक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक इन आवर डिस्कशन दैट, आपको तो याद होगा CFA लेवल 1 में द डिफरेंस बिटवीन taxable income, taxable profit as per ITR versus PBT as per FR, taxable profit as per income tax reporting and PBT as per financial reporting. The difference arises because of permanent differences and temporary differences. So temporary differences में we create deferred tax asset and liability, but permanent differences में what happens? परमानेंट डिफरेंस जो होता है ना बिटवीन पीबीटी एज पर एफआर एंड टैक्सेबल इनकम एज पर आईटीआर, तो परमानेंट डिफरेंस की वजह से क्या होता है याद है? यस, CFA L1 प्लीज. ड्यू टू परमानेंट डिफरेंस बिटवीन एफआर एंड आईटीआर, डू यू रिमेंबर क्या होता है? ड्यू टू परमानेंट डिफरेंस बिटवीन एफआर एंड आईटीआर क्या होता है? यस, गुड इशिका. सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड स्टैट्यूटरी टैक्स रेट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड स्टैट्यूटरी टैक्स रेट. इफेक्टिव टैक्स रेट और स्टैट्यूटरी टैक्स रेट अलग रहते हैं. ठीक है, तो इफेक्टिव और स्टैट्यूटरी टैक्स रेट अलग रहते हैं. तो दे हैव डिस्कस्ड कि बहुत जोर से इफेक्टिव और स्टैट्यूटरी टैक्स रेट जो है ना वो अलग है यूएस गैप में खासकर. ओके, बिकॉज यूएस गैप मेक सम सच एडजस्टमेंट इन द इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो बहुत अलग होता है. तो व्हेन वी गो टू द मॉडलिंग पार्ट, विच पार्ट? मॉडलिंग, फोरकास्टिंग. तो इफेक्टिव टैक्स रेट का फोरकास्ट करते समय ये सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा. तो दिस व्हाट वी डिड राइट नाउ, जरा सा पूरा ओपन नहीं किया, हो सकता है कोई बोलेगा मेरे को पूरा समझ में नहीं आया, डोंट वरी, दिस वाज एनालिसिस. तो वी वर डूइंग अकाउंटिंग, बट ऑल ऑफ यू हैव एन एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड. यू ऑल मेड मी इनटू गो इनटू एनालिसिस. अपने अकाउंटिंग कर रहे थे
और आपने मेरे को वहां से एनालिसिस में ले गया. ऑफ कोर्स एनालिसिस ये जो ITR वाले पार्ट का मैंने ठीक से किया नहीं है. आई विल एक्नॉलेज दैट. तो अगर कोई बोले खुद ही मैं खुश हो रहा था, समझ में तो आया नहीं फालतू में, प्लीज अंडरस्टैंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग LOS-A. ठीक है, तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग LOS-A. ओके, सो you know that I don't take very big classes nowadays because I tend to put in my best in the short form. तो करीब 1 घंटे का क्लास हुआ है. Okay, we will continue this class tomorrow at 7 p.m.